Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 20 गवर्नेंस एट द यूनियन लेवल जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is the Supreme Court. We have mentioned in the beginning of this lesson that the Supreme Court represents the Union judiciary, but the structure and functioning of the judicial branch is different from those of the executive and the legislature branches. Do you have some idea or experience of judicial actions? You may have heard at some point of time that a case that began in the lower court was considered by the courts at the district level, then by the High Court, and ultimately by the Supreme Court. This happens because India has a unified judiciary. It means that there is a hierarchy of courts, at the highest level of which is the Supreme Court, then at the state level there are high courts, and at the district and still lower levels there are subordinate courts. तो हम लोगों ने जैसा कि इस लेसन के बिगनिंग में ही मेंशन किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन जुडिशियरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है जुडिशियल ब्रांच है वो जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव ब्रांचेस है उससे अलग है। क्या आपके पास कोई आइडिया फिर एक्सपीरियंस है जुडिशियल एक्सेस का? आपने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे सुना होगा कि एक जो केस है वो लोअर कोर्ट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, अल्टीमेटली या लास्टली ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के पास यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे हियरार्की है कोर्ट्स के। हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट या फिर उससे भी जो लोअर लेवल है वहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क करते हैं। एंड यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। As provided in the Constitution, the Supreme Court of India consists of the Chief Justice and other judges, whose number is prescribed by the Parliament from time to time. In 1950, there was a Chief Justice and there were 7 judges, but the number of judges continued increasing. As per the need, the Supreme Court at present consists of the Chief Justice and 30 judges. The Chief Justice and other judges of the Supreme Court are appointed by the President of India. तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के, इसमें जो चीफ जस्टिस और जो भी जजेस है वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं समय अनुसार। 1950 में एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे, लेकिन इनका जरूरत के हिसाब से नंबर बढ़ता चला गया एंड अभी प्रेजेंट में एक चीफ जस्टिस और 30 जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। For appointing the Chief Justice of India, the other judges of the Supreme or High Courts may be consulted. Usually, the senior most judge in the Supreme Court is appointed as the Chief Justice. For the appointment of other judges of the Supreme Court, the Chief Justice has to be consulted. Usually, the Chief Justice himself consults a collegium of the 4 senior most judges, and all of them need to agree for any candidate to be recommended for the appointment of a judge. A person can be appointed as a judge of the Supreme Court only if she is a citizen of India, must have been at least a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession for at least 5 years, or must have been an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession for at least 10 years, or is in the opinion of the President a distinguished jurist. Judges of the Supreme Court hold office till they attain the age of 65 years, but they may be removed from office by an order of the President, passed after an address by each House of Parliament, supported by a special majority on the ground of proved misbehavior or incapacity. This is known as impeachment procedure. No Chief Justice or Judge of the Supreme Court has been impeached so far. A judge who has served in the Supreme Court is barred from pleading in any court within the territory of India after retirement.
तो अगर चीफ जस्टिस इंडिया का बनना है, अपॉइंट होना है, तो जितने भी जजेस है या फिर सुप्रीम या फिर हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट किए जाते हैं। एज वेल जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं। एंड जो भी जजेस होते हैं अदर जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर चीफ जस्टिस है, उनसे कंसल्ट किया जाता है। एंड एज वेल जो चीफ जस्टिस है वो खुद से कंसल्ट करते हैं कोलेजियम से, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। एंड वो सब अग्री होते हैं कि ये जो कैंडिडेट है उनको रिकमेंड किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटमेंट के लिए उनके पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। एंड वो एटलीस्ट 5 इयर्स तक वो हाई कोर्ट या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर उनको जो प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट्स या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में उन्होंने 10 साल तक विदाउट ब्रेकेज अपना प्रैक्टिस किया होना चाहिए। एंड या फिर उनके पास एक और क्वालिफिकेशन भी हो सकता है कि वो एक एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मींस एक वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के प्रेसिडेंट की नजर में एक वो, हाँ कि वो एक अच्छे जूरिस्ट है, तो वो भी जाके अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो अपने ऑफिस को 65 इयर्स के एज तक वो होल्ड करते हैं, और उनको उनके टर्म से पहले भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा, जब एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होता है, जब यह पाया जाए कि जो जज है उनका मिसबिहेवियर उन्होंने किया था या फिर उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी जो एक जज के पास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, तो एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इनको रिमूव किया जा सकता है। इस प्रोसीड्यूर को इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर बोला जाता है। एंड अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा रिमूव नहीं किया गया है। एक जो जज सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर लेते हैं तो वो किसी हमारे इंडिया के किसी भी टेरिटरी में रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं कर सकते हैं। Jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court has 3 types of jurisdiction: original, appellate and advisory. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 3 टाइप्स है jurisdiction के: original, appellate और advisory. Original jurisdiction. The Supreme Court alone has the authority to hear directly certain cases. These are disputes between the union government and one or more state governments, disputes between 2 or more states, disputes between the government of India and one or more states on the one side and one or more states on the other side. जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास खुद ऑथोरिटी होता है कि ये कुछ सर्टेन केसेस को डायरेक्टली हियर कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में कोई भी झगड़ा होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में डिस्प्यूट्स होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 या 2 से अधिक स्टेट्स के साथ जो भी डिस्प्यूट्स होता है एक साइड या फिर दूसरे साइड से भी, तो वो उसका भी जो डिस्प्यूट्स होता है, जो झगड़ा होता है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ही जाके सॉल्व करते हैं। Appellate jurisdiction. The power of a superior or higher court to hear and decide appeals against the judgment of the lower court is called appellate jurisdiction. The Supreme Court is a court of appeal for constitutional, civil and criminal cases. It can hear appeals against the judgments of the high courts. It also has the power to review its own judgment. It may, in its own discretion, grant special leave to appeal against any judgment or order delivered or passed by any court or tribunal within the territory of India. Moreover, an appeal may come to the Supreme Court in any criminal case if the High Court certifies that the case is fit for appeal to the Supreme Court. The special appellate power has become a handy weapon in the hands of the court to review the decisions pertaining to elections and labor and industrial tribunals. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास पावर होता है कि ये सुपीरियर और हायर कोर्ट में जो भी हियरिंग्स होते हैं एंड उसका जो भी डिसाइड करना होता है जजमेंट का, लोअर कोर्ट से जो आता है अपडेट, जिसको जुरिसडिक्शन बोलते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको देखते हैं। एंड जो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। एंड इनके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है कि जो भी जजमेंट्स हाई कोर्ट्स के आता है तो उसके अगेंस्ट में ये अपील देख सकते हैं। एंड इनके पास पावर होता है खुद के जजमेंट को रिव्यू करने का। इनका खुद का डिस्क्रिप्शन होता है एक
स्पेशल ग्रांट लीज होता है इनके पास, जो कि किसी भी जजमेंट या फिर जो ऑर्डर पास किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो इसके अगेंस्ट में अपील सुन सकते हैं। एंड इन सब के अलावा जो अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड हो, हाई कोर्ट जिसको सर्टिफाइज कर देता है, लेकिन इसके फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं। इसके पास स्पेशल अपीलेट पावर है जो कि एक हैंडी वेपन की तरह काम करता है, जो कि इसके हाथ में होता है, एंड ये डिसीजंस करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन से रिलेटेड या फिर लेबर या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से उस सब से रिलेटेड ये डिस्प्यूट्स को या फिर जो भी अपीलेट्स है उसको ये देखते हैं। Advisory jurisdiction. The Supreme Court has a special advisory jurisdiction in matters which may specified be referred to it by the President of India. If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such public importance that it is urgent to obtain the opinion of the Supreme Court on it, she may refer it to the Supreme Court. The Supreme Court may, after such hearings as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. The report or the opinion of the Supreme Court is of course not binding on the President. Similarly, there is no compulsion for the court to give its advice. The Supreme Court is a court of record. The records of the Supreme Court in matters of interpretation of the law or of the Constitution have to be accepted when produced before the lower courts. Besides the above mentioned jurisdictions, there are a few more special functions of the Supreme Court of India, and these are followings. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास स्पेशल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिसमें अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी एक स्पेशल मैटर को रिफर करते हैं तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। किसी भी टाइम में जो भी ये लगता है कि प्रेसिडेंट के मन में किसी लॉ या फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहा है या फिर उठने वाला है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो ये अर्जेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो उसको देखे। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जब ये रेफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट उसको उस ओपिनियन को देखते हैं। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हियरिंग को देखने के बाद, सुनने के बाद वो सोचते हैं कि हाँ ये सही है, तो वो अपने ओपिनियन को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है उस केस से रिलेटेड। एंड ये जो रिपोर्टेड ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट को बाइंड नहीं करता। एंड सिमिलरली कोर्ट के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो उस चीज पे एडवाइस दे। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट है रिकॉर्ड का, मीन्स वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ है या फिर जो भी लोअर कोर्ट्स में जो भी प्रोसीड्यूर हुए तो उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। एंड इन सबके अलावा जो भी मेंशन जुरिस्डिक्शन थे उन सबके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल फंक्शंस भी है। तो चलिए हम लोग उन स्पेशल फंक्शंस को देखते हैं। Guardian of the Constitution. As the interpreter of the Constitution, the Supreme Court has the power to protect and defend the Constitution. If the court finds that any law or executive order is against the Constitution, the same can be declared unconstitutional or invalid. Similarly, the Supreme Court also acts as the custodian and protector of fundamental rights. If any citizen feels that his or fundamental rights have been infringed, she may move to the Supreme Court directly for the protection of his or fundamental rights. The right to constitutional remedies empowers the Supreme Court to act as the guardian of the Constitution. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि वो एक इंटरप्रेटर है संविधान का, तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सके। एंड अगर कोर्ट पाता है कि कोई भी मतलब कि जो लॉ है या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस असंवैधानिक है या फिर इनवैलिड है। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके पास फंडामेंटल राइट्स कि इनके पास पूरा कस्टडी होता है और ये इनके प्रोटेक्टर होते हैं। अगर किसी भी नागरिक को ये महसूस होता है कि जो उनका फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जाके वो अपील कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खुद प्रोवाइड किया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं क्योंकि ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट।
Judicial review. The Supreme Court of India has the power to examine the validity of laws or executive orders. The Supreme Court has the powers to interpret the Constitution, and through this it has assumed the power of judicial review. तो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, इसके पास पावर है कि वो लॉज और जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है उसके वैलिडिटी के ऊपर ये एग्जामिन कर सके। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है इनके पास पावर है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंटरप्रेट कर सके अपने स्पेशल पावर के थ्रू, जो कि इनका जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल एक्टिविज्म. Judicial activism has been defined as innovative interpretation of the Constitution by the court. This has often been criticized as the judiciary taking over the powers of the legislature. But in India, it has enjoyed support from the public because it has concentrated on giving the disadvantaged the access to justice. It uses the instrument of public interest litigation PIL. With public interest litigation, any person can bring a petition about a problem before the court and not just the person affected by the problem. PIL has often been used on behalf of people who are poor or disadvantaged and do not have the means to approach the court. With judicial activism and PIL, courts have given judgments on pollution, the need for a uniform civil code, eviction of unauthorized buildings, stopping child labor in dangerous occupations and other issues. तो इनका जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट के द्वारा, और इसमें जो भी चीजें क्रिटिसाइज की जाती है जुडिशियरी से रिलेटेड, तो इनके पास पावर होता है कि ये उस पावर को यूज करके उस चीज को देख सके। लेकिन इंडिया के पास जो है वो फुल सपोर्ट होता है पब्लिक का, तो इसमें जो भी डिसएडवांटेज होते हैं जस्टिस से एक्सेस, तो वो देखा जा सकता है कि किस तरह से हम लोग को करना है। और इनके पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है विच इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिटिगेशन के लिए होता है, मीन्स पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है। कोई भी पर्सन जिनको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कोर्ट में जाके अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड जो उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। PIL जो है वो पीपल की बिहाफ में यूज किया जाता है, जो कि गरीब होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, इनके पास कोई मीन्स नहीं होता कि वो जाके कोर्ट में अप्रोच कर सके। इसलिए जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो PIL है वो कोर्ट्स में जजमेंट के लिए दिए जाते हैं, एंड जो जजमेंट्स है वो पॉल्यूशन के ऊपर दिया जाता है, या फिर जरूरत पड़ता है किसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ये भी PIL के द्वारा किया जाता है। फिर जो भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है जहाँ पे निर्माण के लिए ऑर्डर नहीं दिया जाता है, अगर कोई लोग वहां पे बिल्डिंग बनाता है तो उसके एविक्शन के लिए भी PIL फाइल किया जाता है। एंड जो भी चाइल्ड लेबर जहाँ पे करवाए जाते हैं, जहाँ पे डेंजरस ऑक्यूपेशन में जहाँ पे खतरनाक काम करवाए जा रहे हैं बच्चों से, तो उसको भी स्टॉप करने के लिए PIL फाइल किए जा सकते हैं। एंड कोई भी ऐसा इश्यूज जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी गरीब या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप है जो अपना खुद से जाके अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट में, तो वो थ्रू PIL अपना इश्यू को जाके कोर्ट में दे सकते हैं। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 20.5। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल एक्सरसाइज भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहां से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.